Welcome to the channel Easy Trick of the Computer Science students, and as well as those students who learn something new in the computer science field. So this is the new tutorial with the part number 2 with the digital technology. So those students who don't see the previous tutorial related with the analog technology, the link available into the description box, and you all will check it out, that particular link, and after that you will shift into that particular digital technology features and grab the good knowledge related with the next part of the analog and digital transmission. And also the digital television technology is always releasable with the past few years, that is related with the LED and the smart TV availability with the digital technologies. So the smart TV is also the digital television technologies with the digital technologies available under the analog and digital transmission. So these are the areas of applications. And next we will learn about the digital technology is the basic things. The digital technology basic things related with the assigned values from particular conversion from the analog signal impedance value with the frequency hertz with the low and the high bandwidth, and the digital computer technology related with the digital signals binary representation with the zeros and ones, encoding totally with the zeros and ones, and the analog signal impedance related with the frequency spectrum and the bandwidth availability under the analog signal. So in the digital technology we will fetch the values in future also with the binary figures and the assembly language and the machine language. In past also we was used this, in present we are using this, and in future we will use this. So the major advantage of the digital technology is that is processing related with the computer technology, either it is desktop or it's laptop, notebook, and in any mobile application with any type of operating system. And the programmable services related with the every language, that is the low level, middle level, and the high level language. So low level language is related with the totally 99% code with the mnemonic codes, and the middle level language related with the 70% part of the mnemonic codes and the 30% part of the English related language. So the high level language is the dynamic language related with the English inbuilt functions, बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो ग्रैब नहीं कर पाते इतनी जल्दी मशीन लैंग्वेजेस को, तो लो लेवल लैंग्वेज उसको निमोनिक कोड्स के साथ जोड़ा गया है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो आजकल अवेलेबल है, जैसे कि पाइथन बहुत ज़्यादा डायनामिक लैंग्वेज है, वो इसी वजह से ही स्टैंडर्ड इंटरफेस में निकालनी पड़ी डिजिटल के, कि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग फीचर से डर जाते हैं। तो जब डर जाते हैं तो उन्हें कोई ऐसी लैंग्वेजेस बना के देनी पड़ेगी जो कि रिलेटेड होगी विद द इनबिल्ट फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड इंटरफेस लैंग्वेजेस, ताकि आप उनको यूज़ करके भी कोई बेटरमेंट डिजिटल सिग्नल्स तक एंट्री कर सको। तो निमोनिक कोड लैंग्वेजेस भी अवेलेबल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि अगर वो अवेलेबल ना हो तो डेफिनेटली आप किसी भी नई लैंग्वेजेस के साथ वर्क नहीं कर सकते। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द all the languages and the applications development and the software development. Software development having the all features of the low level language, middle and the high level language, but the application process under only single language like Python, Java, C hash, C.NET, ASP.NET, PHP, any one from that particular thing. So the better quality due to the ability of the digital pattern at the receiving end, it's the related with the high level language. So the common man definitely fetch the signal with the zeros and ones with the better technology of the standard interface language in all over the universe, that is the standard English language. And the faster communication speeds are also possible in the digital format. So डिजिटल सिग्नल्स का जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो जीरो वंस में ही इम्पीडेंस होता है। इसमें उसमें जो हमने देखा था कि एनालॉग सिग्नल्स में वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, इसमें वो पल्स रेट की बात करेगा। अकॉर्डिंग टू द पल्स रेट और पल्स ड्यूरेशन, टाइमिंग वही है। अगर जिन्होंने भी पिछला टॉपिक रिव्यू नहीं किया काइंडली उसको देखिएगा। टाइम का पार्ट उसमें भी परफॉर्म हो रहा है, टाइम का पार्ट इसमें भी परफॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ थिंक अबाउट दैट कि जब आप कोई चीज़ कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड या अपलोडिंग कर रहे हो तो उस टाइम के ऊपर
एनालॉग सिग्नल्स भी चल रहे होते हैं, डिजिटल भी चल रहे होते हैं। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि इम्पीडेंस जब भी टाइम एरिया से बाहर जाती है तो मॉडेम अगर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा डिजिटल सिग्नल्स पे, या आपकी बैंडविड्थ जो प्रॉपर नहीं आ रही, तो फिर वो इम्पीडेंस नहीं हो सकता। अब डेस्टिनेशन पे अगर आपका मैसेज आ चुका है और आपने फॉरवर्ड करना है सोर्स वाले को, तो डेफिनेटली है अब आप सोर्स हो गए हो, वो डेस्टिनेशन हो चुका है। तो टोटल टाइम स्ट्रेंथ में होना चाहिए, जो बात वहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे हो रही थी वही बात यहाँ पे पल्स पे हो रही है, क्योंकि पल्स ड्यूरेशन ये चेक करती है कि टोटल टाइम यूजर का क्या लग रहा है और सिग्नल में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, जितनी आपको एनालॉग सिग्नल ने कन्वर्ट करके डिजिटल को 1Z0 में रिप्रेजेंट करवानी है। सो इसकी बेसिकली टर्म्स जो है वो है पल्स, पल्स ड्यूरेशन, पल्स एम्पलीट्यूड एंड द सिग्नल स्ट्रेंथ। पल्स इज द सिंगल वैल्यू जब आप फॉर एग्जांपल की पैकेट फॉर्म में इंटरनेट पे डेटा जो है वो डिलीवर होना होता है। अगर हमारे पैकेट का पार्ट 20 MB कंप्लीट है और हम उसको बाइनरी डिजिट से अगर डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय द 2 करके 10 पार्ट्स बन गए, मतलब एवरी पार्ट कंटेनिंग द 2 MB पार्ट। So 2 MB part single is the pulse and 20 MB total is the pulse duration. pulse amplitude की वो उससे पहले अपना काम खत्म कर लेती है सिग्नल स्ट्रेंथ अगर बैटर चल रही है कि नहीं कर सकती। क्लॉक स्पीड भी साथ में वर्क कर रही होती है, क्योंकि देखिए आपका जो बेसिकली OSI या TCP/IP मॉडल जो वो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जब भी डेटा लिंक लेयर ये असेंबली करवाती है या फिजिकल लेयर से कुछ भी वो ले रही होती है, तो बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में लेती है। बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में डेफिनेटली क्लॉक पल्स हमेशा वर्क कर रही होती है और क्लॉक की स्पीड और पल्स ड्यूरेशन जो है वो काउंटेबिलिटी में आ जाती है। क्लॉक की स्पीड और एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करते हैं कि वो लेता कैसे है। पल्स ड्यूरेशन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है क्लॉक की फ्रीक्वेंसी के। मतलब कि अगर क्लॉक की फ्रीक्वेंसी 1 मिनट के बाद आपकी किसी कंटिन्यूटी पे पहुंचती है, तो कंप्यूटर का जो पल्स ड्यूरेशन पार्ट होता है डिजिटल में वो नैनो सेकेंड में डील करके उसको डिपेंडेंसी दिखाता है। फास्टर द क्लॉकर स्पीड, क्लॉक की स्पीड हमेशा फास्ट होती है और पल्स की ड्यूरेशन हमेशा स्लो होती है, क्योंकि वो 2 MB का डेटा एट ए टाइम रिलीज कर रहा है, 20 MB का इकट्ठा नहीं कर रहा होता। स्मॉलर द पल्स ड्यूरेशन फास्टर द एग्जीक्यूशन इन जनरल, कि अगर आप जितनी पल्स ड्यूरेशन आपका छोटा पार्ट चल रहा होगा उतनी जनरलाइजेशन में एग्जीक्यूशन बेटर चलेगी, क्योंकि उसके पार्ट छोटे हैं तो राउटर किसी भी पार्ट से एंट्री करवा सकता है, और अगर पार्ट बड़े आते जाएंगे तो उसका वेटिंग टाइम उतना बढ़ता जाता है। शॉर्टर पीरियड का टाइम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से भी कन्वर्जन में चला जाता है और वो क्लैरिटी करके पल्स ड्यूरेशन से ऑटोमेटिकली डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू बाहर भी आ सकता है। सो क्लॉक स्पीड और कम्युनिकेशन स्पीड की हम बात करते हैं कि जब आपका डेटा किसी तक पहुंचता है तो वो किस कम्युनिकेशन लेवल को हिट करके पहुंच रहा होता है। देखिए जितनी क्लॉक की स्पीड बेटर होती है उतनी पल्स की ड्यूरेशन स्मॉलर होती है, हमने देख लिया है। जितनी स्मॉल रखोगे उतनी जल्दी टाइम जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाता है और जल्दी डेटा आपका पहुंच जाता है। और जितना आप उसको कंप्रेस डाटा को नहीं भेज रहे हो, अब कंप्रेस टेक्निक क्या होती है, डाटा कंप्रेशन टेक्निक हमेशा नेटवर्क के पार्ट पे हमेशा चल रही होती है। तो कंप्रेस जब भी उसने डेटा करना है तो इसी फॉर्मेट पे करना है कि क्लॉक की स्पीड अगर फास्ट है तो उस पल्स की ड्यूरेशन उसको स्लो रखनी ही पड़ेगी, और अगर स्मॉलर पल्स ड्यूरेशन है तो टाइम टेकन जितना लेगा ट्रांसमिशन में वो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। मतलब अगर स्मॉलर है तो डेफिनेटली है कि वो 1 बिट ट्रांसमिट कर रही है, इससे ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर रही। तो इसकी मेजरमेंट हम लेते हैं मेगा हर्ट्स के अंदर, जो क्लॉक की स्पीड है, क्योंकि वो एनालॉग सिग्नल का काम हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली मेगाहर्ट्ज में आ रहा है। और जितना कम्युनिकेशन स्पीड का काम हमारा पर्टिकुलरली डिजिटल सिग्नल्स के अंदर आ रहा है वो मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। So the thing related with the digital technology is always with the megabits per second and the clock pulse related with the analog signal, कि कितने परसेंट उसने आपको एनालॉग सिग्नल देना होता है। अब कंप्यूटर के ऑपरेशन के साथ इसकी बात करते हैं कि एनालॉग का जो कंप्यूटर क्लॉक स्पीड है वो अब कैसे वर्क कर रही होती है। तो क्लॉक की स्पीड जो कंप्यूटर ऑपरेशन के साथ वर्क करती है तो हमेशा हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में ही वर्क करती है। सो कंप्यूटर ऑपरेशंस आर टाइम्ड बाय क्लॉक, namely clock speed measured in hertz, and the faster the speed and the smaller the pulse duration, डेफिनेटली कि
जितनी स्पीड उसकी बेटर होती है उतनी पल्स ड्यूरेशन कम होनी कंपल्सरी है कंप्यूटर ऑपरेशन में भी, और टाइम भी ये पल्स ड्यूरेशन से ही उठाती है। और जितना एनालॉग स्पीड उसे देता जाता है विद द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, दैट इज द multiple modulation techniques over there, that is the pulse modulation technique we will learn into the next part, that is what is actually a pulse modulation technique over behind over the digital and the analog signal. So the faster speed भी क्यों concerning में बार बार आ रही है ये हम जरूर पढ़ेंगे। So this is the conversion of the digital to analog and the analog to digital conversion. So in the first part जो हमने पढ़ा था वो था एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, किस तरह से वो चलते हैं। अब हमने पढ़ा है कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, किस तरह से चलते हैं। अब इस पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे कि डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल जब कन्वर्जन ये करते हैं तो किस तरह की पल्स कॉर्ड मॉड्यूलेशन में एंट्री करवा के ये करते हैं। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ टॉपिक, any type of query or any type of question, kindly comment into the comment box. Definitely reply will be given within the 24 hours, and the next part definitely release very soon with the conversion of these particular technologies. Till then, take care. Thank you.